Good morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will start chapter 2 from our book Hornbill. Name of chapter 2 is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Here we refers to the family members of the narrator, and this is a statement spoken by one of the main character, the son of the narrator, Jonathan. Written by Gordon Cook and Ellen East. Gordon Cook is actually the narrator of this chapter, and Ellen East may have helped the narrator. This chapter is a travelogue. ट्रेवलॉग मीन्स क्या है? यात्रा वृत्तांत, जिसमें किसी यात्रा का वर्णन किया गया हो, वो लेख। तो यहाँ पर एक वोयाज का वर्णन किया है नरेटर ने। लेट्स डिस्कस द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. नंबर 1 इज नरेटर. ही इज 37 years old. He is a man of great courage and commitment. He proved to be the best father. Next one is Mary. She is the wife of the narrator. She always stood by her husband in every condition, in every situation. Next one is Susan. She is 7 years old, daughter of the narrator. Shortly she is known as Sue. Next one is Jonathan. He is 6 years old, son of the narrator. In short, he is known as John. Next one is Larry Vigil. He is an American crewman who helped a lot in the bad condition. Next one is Herb Sizzler. He is a Swiss crewman. He also helped the family in the bad weather to rescue the ship. There are made 6 characters, and there is one name also. Name is Wave Walker. Wave Walker. It is a boat. It was 23 meter long and 30-ton wooden hulled boat. Wooden hulled boat means क्या है? Made of wood planks. Here, in this description, the narrator is giving first person account, first person narration of the story. First person narration means क्या है? The narrator is using I, we, first person pronouns in the story. Let's take an introduction of the story. Here, the narrator. Who is the narrator? Gordon Cook. Decide to duplicate the voyage which was made 200 years ago by Captain James Cook. After deciding it, he started preparation for the voyage with the help of his wife Mary. Both husband and wife prepared for the journey. They made the ship Wave Walker, and they tested this ship in the roughest weathers they can. And now their journey starts in July 1976 from Plymouth in England. They started from Plymouth in England, and now they have to reach Australia. They had to take a stay at South Africa, and from there they took Larry Vigil and Herb Sizzler as their helpers, because they knew the next part of the journey will be having the roughest sea of the world. The Indian Ocean, Southern Indian Ocean, is known as the roughest sea in the world, and now they have to proceed through that sea. That's why they took Larry Vigil and Herb Sizzler as the helpers. But
When they faced the bad weather, the situation of everyone was very pathetic. They faced difficult situations, and at last they reached their destination, Australia. Students, let's discuss the chapter line by line. Chapter second, we are not afraid to die if we can all be together, by Gordon Cook and Ellen East. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जो कि 6 इयर्स का है, बेटी सुजैन जो कि 7 इयर्स की है, और मैं सेट सेल में क्या स्टार्टेड ए सी वोयाज, एक समुद्री यात्रा हमने शुरू की जुलाई 1976 में. कहाँ से? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से. टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मीन्स क्या? कॉपी करने के लिए, सेम यात्रा करने के लिए. द राउंड द वर्ल्ड, संसार का चक्कर लगाने के लिए. वोयाज मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो कि संसार के चक्कर लगाने के लिए एक समुद्री यात्रा, वोयाज मीन्स क्या? सी जर्नी, एक समुद्री यात्रा की गई थी 200 साल पहले, 200 ईयर्स बिफोर. किसके द्वारा? बाय कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा. इस यात्रा को कॉपी करने के लिए मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा 6 इयर्स का जोनाथन और बेटी 7 इयर्स की सुजैन है, वो निकल पड़े समुद्री यात्रा पर जुलाई 1976 में. स्टूडेंट्स, I want to show you the map that it will help you to understand in better way. Yes, in this map you can see the places from where they started, they reached. Their starting point was from Plymouth, that is a seaport in England, and from Plymouth they had to reach Australia. It was their destination, and the total distance from Plymouth to Australia is 2,55,000 km. Now, the first leg, the first phase of their journey is from Plymouth to Cape Town, that is a seaport in South Africa, and this distance was 1,05,000 km, and it was a very happy journey for them. They spent a very good time during this journey from Plymouth to Cape Town. And after reaching Cape Town, they take 2 helpers, Larry Swiss and Herb Sizzler, because they knew the next part of their journey, that is from Cape Town to Australia, is through the world's roughest sea, that is Southern Indian Ocean. And to face the roughest sea, they need helpers. That's why they take 2 helpers from Cape Town and they proceed their journey. And from Cape Town to Australia, the distance is 1,50,000 kilometers. Let's see. For the longest time, लंबे समय तक, मैरी एंड आई, मैरी ने और मैंने, ए 37-year-old बिजनेसमैन, जो कि एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन था, अपनी बता रहा है कि मैं एक 37 साल का बिजनेसमैन था. मैंने और मेरी पत्नी मैरी ने मिलकर के क्या किया? हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, हमने सपने देखे थे सेलिंग के, समुद्री यात्रा के. इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, इन द वेक ऑफ मीन्स क्या है? फॉलो, पीछा करने के लिए जो प्रसिद्ध एक्सप्लोरर हुए. एक्सप्लोरर मीन्स क्या है? ए पर्सन हु विजिट्स द न्यू प्लेसेस टू लर्निंग द डिटेल्स अबाउट दैम. अन्वेषक हिंदी में कहे तो, जो कि प्रसिद्ध अन्वेषक हुए. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम. लीजर टाइम मीन्स क्या है? टाइम स्पेंट इन डूइंग enjoy गिविंग एक्टिविटीज, आनंददायक कार्य करते हुए समय बिताना. अब हमने लीजर टाइम बिताया था, बहुत ही अच्छा टाइम बिताया था. होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, होनिंग मीन्स क्या है? शार्पनिंग, तीखा करते हुए, तीक्ष्ण करते हुए, बढ़ाते हुए. आवर सी फेयरिंग मीन्स क्या है? रिलेटेड टू सी, ट्रेवलिंग ऑफ द सी, समुद्र की यात्रा से संबंधित जो हमारी स्किल्स थी, जो हमारी इंटेलिजेंस थी, उसको
तीक्ष्ण करते हुए, तेज करते हुए, शार्प करते हुए हमने पिछले 16 सालों का वक्त बिताया था इन ब्रिटिश वाटर्स, जो ब्रिटिश सी था उसमें। आर बोट वेवोकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, हमारी बोट वेवोकर जो कि 23 मीटर की लंबाई की थी और 30 टन वुडन हल्ड मीन्स क्या है, मेड फ्रॉम वुडन प्लैंक्स, वुडन के जो प्लैंक्स थे, फट्टे से, उनसे बनी हुई जो शिप है वेवोकर। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको बनाया गया था प्रोफेशनली तौर पर, प्रोफेशनल मीन्स क्या है, वेल ट्रेंड इन ए जॉब और प्रोफेशन, व्यवसायिक रूप से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने महीनों का वक्त बिताया था इसको फिट करते हुए, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और इसका टेस्ट करते हुए बार बार इसको रफेस्ट, जितना रफ वेदर हमें मिल सकता था, जितनी बैड कंडीशन का सी हमें मिल सकता था, उसमें हमने जाते हुए इसमें वक्त बिताया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, फर्स्ट लेग मीन्स क्या, पार्ट, जो पहला पार्ट था, फेज था हमारी यात्रा का, जो हमने प्लानिंग की थी, क्या प्लानिंग की थी कि 3 साल की ये यात्रा होगी। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली, जो कि पहला पार्ट था 1,05,000 किलोमीटर का, वो बड़ी खुशीपूर्वक बीता, बड़े आनंददायक स्थिति में बीता। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका टू केप टाउन, जब हम सेल करते हुए, समुद्र में यात्रा करते हुए, नाव को आगे बढ़ाते हुए, बोट को आगे ले जाते हुए यात्रा कर रहे थे वेस्ट कोस्ट में, पश्चिमी तट के साथ साथ अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां से ईस्ट में आगे बढ़ने, हेडिंग मीन्स क्या है, प्रोसीडिंग और मूविंग टुवार्ड्स, ईस्ट में आगे बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 दल के सदस्य लिए, हेल्पर्स लिए। अमेरिकन लैरी विजिल, जिनमें एक था अमेरिका का लैरी विजिल, एंड स्विस हर्ब सिजलर, और दूसरा था स्विट्जरलैंड का हर्ब सिजलर। टू हेल्प अस टू टैकल मीन्स क्या है, फेस, सामना करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जो संसार के सबसे रफ समुद्रों में से एक था, उसमें प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमने 2 हेल्पर लिए। द साउदर्न इंडियन ओशियन, कौन सा है रफेस्ट सी, जो साउदर्न इंडियन ओशियन है वो दक्षिणी इंडियन ओशियन में सबसे रफ सी माना गया है, इसको पार करने के लिए हमने 2 हेल्पर्स ले लिए। कहाँ से लिए, साउथ अफ्रीका के केप टाउन से। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हमारा दूसरा दिन था केप टाउन से बाहर, केप टाउन से चले उससे अगले दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर मीन्स क्या, फेस, सामना हुआ हमारा। स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स क्या, झंझा, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज चलती हुई हवाओं से हमारा सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह के लिए, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार चलती रही, क्या, हवाएं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो एक गेल्स थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, ये मुझे चिंतित नहीं कर रही थी, इनसे मुझे डर नहीं लग रहा था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग मीन्स क्या, फियरफुल, परंतु जो साइज था, जो आकृति थी वेव्स की, लहरों की, वो क्या थी, अलार्मिंग थी, फियरफुल थी, डरावनी थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, कहाँ तक जा रही थी, 15 मीटर की ऊंचाई तक ये वेव्स थी, जितना ऊंचा हमारा मेन मास्ट था। मास्ट मीन्स क्या होता है, द हाईएस्ट पोल ऑफ द शिप दैट सपोर्ट्स द सेल्स, मस्तूल, वहाँ तक, इतनी ऊंचाई तक ये लहरें उठ रही थी। स्टूडेंट्स, लेट मी शो द पार्ट्स ऑफ द शिप दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर in a better way. Students, here in this pic, see the main parts of the shape that will come again and again in the chapter and will also help you. This is the mast, that is the highest position in the ship, and it helps to the sails means क्या है, ये जो है कर्टेन से, ये है sails, इनको सपोर्ट करता है ये मास्ट। ओके, देन इट इज मेन सेल मीन्स क्या है, जो कि मेन पार्ट है सेलिंग के लिए, जो मेन सेल है वो है।
Next parts, see carefully and understand these. This part is known as the boom. Okay, cockpit. This here is the cockpit. This is the stern. Stern means क्या, front part. And this is rudder, cabin, where the necessary materials are kept, and this is called the bow. Students, I think it is clear to you, and it will help a lot in our understanding of the chapter. December 25 found us 35 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. जब 25 दिसंबर था उस दिन हमने अपने आप को पाया कि हम 3500 किलोमीटर्स जो कि ईस्ट में पहुंच गए थे केप टाउन के. केप टाउन से निकले थे, ईस्ट साइड में आगे प्रोसीड कर रहे थे, बढ़ रहे थे, और अब हम केप टाउन को पीछे छोड़ चुके थे 3500 किलोमीटर्स. किस दिन? 25 दिसंबर को. डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर. डिस्पाइट मीन्स क्या? इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद. एट्रोशियस मीन्स के वेरी बैड, बहुत ही बुरे मौसम के बावजूद. वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री. हमारा एक अद्भुत हॉलीडे हमने बिताया जो कि कंप्लीट किया हमने क्रिसमस ट्री के साथ, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हुए. न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. और जब न्यू ईयर का दिन आया उस दिन भी वेदर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था. मीन्स जैसे पहले वेदर था उससे और भी शायद बदतर हो रहा था, अच्छा वेदर नहीं था. बट वी रीजन मीन्स क्या? आर्ग्यूड. हमने तर्क दिया दैट इट हैड टू चेंज सून, कि शायद यह जल्दी ही बदल जाएगा, वेदर है वो जल्दी ही बदलने वाला था. एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी. फॉर द वर्स. क्या बदला हुआ इसमें? अब बैड से वर्स हो गया, बुरा था, बद से बदतर वेदर हो गया. एट डॉन ऑन जनवरी 2. डॉन मीन्स क्या? अर्ली मॉर्निंग, सुप्रभात में, सुबह जल्दी. 2 जनवरी की बात है. द वेव्स वर गिगेंटिक. गिगेंटिक मीन्स क्या? वेरी ह्यूज. लहरें बहुत ही भयंकर थी, बहुत बड़ी बड़ी थी. वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप. अब हम केवल सेल कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे एक छोटे से स्टॉर्म जिप के साथ. जिप मीन्स कहता है स्मॉल सेल, एक पाल ही होता है जहाज में, उसके सहारे से, जो कि स्टॉर्म के लिए लगाया गया था. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स. नोट्स मीन्स क्या है? सी मील्स. समुद्र में मील में जो दूरी नापी जाती है, मापन किया जाता है, वो. और अब हमने इस जिप के सहारे आगे बढ़े थे 8 समुद्री मील तक. एट द शिप रोज एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव. और जैसे कि जहाज थी वो उठ रही थी हर एक वेव की ऊंचाई के साथ. वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस. एंडलेस मीन्स क्या? विदाउट एनी एंड, अंतरहित. इनॉर्मस वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा समुद्र हम देख सकते थे. रोलिंग टुवर्ड्स अस. रोलिंग मीन्स क्या? रोलिंग, लुढ़कता हुआ, जो कि हमारी तरफ लुढ़कता हुआ नजर आ रहा था. हर एक लहर के साथ जहाज वो ऊपर उठ रही थी, जिससे हम देख सकते थे बहुत अधिक लुढ़कता हुआ समुद्र हमारे सामने. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड. स्क्रीमिंग मीन्स क्या? चित्कार, स्पीक्स. जो विंड की जो स्क्रीमिंग थी, चित्कार थी. एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. और जो स्प्रे था, स्प्रे मीन्स क्या? जो पानी की लहरों के साथ जो पानी हमारे ऊपर गिर रहा था, वो क्या था? ईयर्स के लिए बहुत ही पेनफुल था. जो क्या था पेनफुल? जो स्क्रीमिंग थी विंड की, हवा की जो चीख थी, चित्कार थी, वो क्या था? बहुत ही भयानक थी. स्क्रीमिंग को क्या कहते हैं? हाउलिंग. बहुत अधिक चित्कार, बहुत अधिक शोर शराबा जो था वो कानों के लिए बड़ा परेशानीदायक था. मीन्स बहुत अधिक शोर के साथ वो स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी. टू स्लो द बोट डाउन. अब बोट को स्लो करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप. हमने जो स्टॉर्म जिप था, जो कि स्टॉर्म के लिए लगाया गया पाल था, सेल था, उसको गिरा दिया. एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप. लेस्ट मीन्स क्या? फास्टेंड, बांध देना टाइट से. एक भारी भरकम जो मूरिंग रोप थी, जो रस्सी थी मोटी सी, उसको बांध दिया गया. इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न. स्टर्न मैंने अभी आपको पिक में दिखाया था. स्टर्न के पार एक लूप से इसको
बांध करके रखा गया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग। लेस्ट मीन्स क्या, फास्टन, बांध देना, टाइट से कस करके बांध दिया हर एक चीज को। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। और अब हम जो हमारी लाइफ राफ्ट थे, जीवन संरक्षक जो किश्तियाँ थी, उनको देखा। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और जो जीवन से संबंधित लाइफ लाइन्स थी उनको उनसे जोड़ दिया। डन्ड ऑयल स्किन्स। ऑयल स्किन्स मीन्स क्या है, वाटरप्रूफ जैकेट्स कह सकते हैं। और मोमजामे, अब जो मोमजामे थे वो हमने अपने ऊपर पहन लिए थे क्योंकि पानी गिर रहा था। एंड लाइफ जैकेट्स, और जो लाइफ जैकेट्स थी वो भी पहनी थी। एंड वेटेड, और हम इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, और ये पहला इंडिकेशन था, साइन था, संकेत था। इम्पेंडिंग मीन्स क्या है, बहुत ही आने वाला जो तूफान था अभी उसका। केम एट अबाउट 6 PM, और ये लगभग हमें 6 बजे के आसपास हमारे सामने आया। विथ एन ऑमनियस साइलेंस। ऑमनियस मीन्स क्या, इविल, बुरी चुप्पी के साथ। द विंड ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मीन्स क्या, बिकेम लेस, हवा अब धीमी हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक क्या हो गया था, डार्क हो गया था। मीन्स काले काले बादल वहाँ पर आ गए थे। देन केम ए ग्रोविंग रॉयर। ग्रोविंग मीन्स क्या, बढ़ती हुई, रॉयर तेज दहाड़ने की आवाज़ फिर वहाँ पर आती है। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट। टावर्ड एफ्ट मीन्स क्या, कवर्ड द शिप, मंडरा जाता है जहाज के ऊपर। केम ओवर, जहाज के ऊपर आ गया था क्या, एक बहुत बड़ा, वेरी बिग जो क्लाउड था वो जहाज के ऊपर मंडरा गया था। विद हॉरर, डर से, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। मुझे आभास हुआ कि ये कोई क्लाउड नहीं था, ये कोई बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। परंतु एक वेव थी, एक लहर थी जो कि जिस तरह की अब तक मैंने नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्ट वर्टिकल, और यह बिल्कुल एकदम वर्टिकल, सीधी खड़ी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग जो दूसरी लहरें थी उनसे डबल हाइट की थी, दुगनी हाइट की थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। फ्राइटफुल मीन्स क्या, फियरफुल, डरावनी। ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स क्या, टॉप, टॉप को तोड़ देने वाली बहुत ही भयानक लहर ये थी। द रोयर इंक्रीज टू ए थंडर, और जो रोयर थी, दहाड़ थी, वो बढ़ गई एक थंडर में, एक बवाल में, एक थंडरिंग साउंड में, बहुत भयानक आवाज में। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। कि स्टर्न क्या है, अभी मैंने दिखा था जो बैक पार्ट ऑफ द शिप है उसके। स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, वो क्या हो गया, मूव हो गया जब लहर के सामने आया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर सवार हो जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। ट्रेमेंडस मीन्स क्या, वेरी ह्यूज, बहुत बड़े एक्सप्लोजन ने, विस्फोट ने जहाज का जो डेक था, ऊपरी जो पार्ट था उसको हिला दिया पूरी तरह से। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टोरेंट मीन्स क्या था, जलधारा, पानी है वो फूट पड़ा जो कि हरे और सफेद रंग का था वो जहाज के ऊपर। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। स्मैश मीन्स क्या, टकरा गया, और मेरा जो सर था वो टकरा गया व्हील से। व्हील्स क्या है, जो कि जहाज को साइड चेंज करने के लिए जो व्हील है वो। वाटर, सॉरी, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं मुझे पता था कि मैं अब ओवरबोर्ड जहाज के ऊपर जाने वाला था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूबने वाला था। क्या हुआ, जैसे ही लहर आई, पानी की धारा है वो जहाज के ऊपर टूट पड़ी, तो जो व्हील, जो स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था नरेटर ने, उससे उसका सिर टकराया और अब वो गिर गया है पानी में। अब उसे लग रहा है कि मैं डूबने जा रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने स्वीकार कर लिया था मेरी पहुंचती हुई मौत को। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब जैसे ही मैं अपना होश खो रहा था, अपनी जागृत अवस्था को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैं बिल्कुल शांति महसूस कर रहा था।
नरेटर यहाँ पर बिल्कुल मरने को है, सोच रहा है कि अब लहरों के नीचे मर जाऊंगा, और बहुत ही शांति वो महसूस कर रहा है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, जिसकी उम्मीद नहीं थी, इस तरह से मेरा सिर है वो पानी से बाहर निकला। पोप्ड आउट मीन्स कम ओवर, पानी के बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और कुछ ही मीटर की दूरी पर वेव वॉकर था, वो लगभग डूबने को था। कैप्साइजिंग मीन्स क्या, डूबने को, सिंकिंग, डूब रहा था। जहाँ पर नरेटर था समुद्र में, वहां से कुछ मीटर की दूरी पर उसे वेव वॉकर दिखाई दिया। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो मास्ट था जो कि वर्टिकल पोजीशन में था, वो हॉरिजेंटल हो गया था, क्षितिज रूप में हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर एक लहर थी वो बिल्कुल ऊपर से दौड़ गई। हर्ल्ड मीन्स क्या, थ्रू अवे, सीधा फेंक दिया जहाज ने उसको, किसको, मास्ट को। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और जर्क मीन्स क्या, झटके के साथ, जो लाइफ लाइन थी वो झटके से। टॉट मीन्स क्या, स्ट्रेट एंड टाइट, वो तनी हुई थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, जो गार्ड रेल्स थी, जो रेलिंग लगी हुई थी सुरक्षा के लिए, मैंने उनको, ग्रैब मीन्स क्या, टाइट से पकड़ लिया, हाँ, होल्ड टाइटली। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और अब मैं सेल करके आ गया था कहाँ पर, हवा में से वेव वॉकर के मेन बूम में आ गया था। बूम क्या है, बार, जो डंडा था वहां पर पहुंच गया था। वेव वॉकर में वापस आ गया है नरेटर। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडॉल। सब्सिक्वेंट मीन्स क्या, फॉलोइंग, आने वाली जो वेव्स थी, लहरें थी, उन्होंने टोस्ट मीन्स क्या, ऊपर उछाल दिया, मेरे को ऊपर उछाल दिया डेक के ऊपर, लाइक ए रैगडॉल। रैग मीन्स क्या है, क्लोथ्स, चिथड़ों से बनी हुई गुड़िया की तरह से उन्होंने मेरे को कहाँ पर उछाल दिया, टोस्ट कर दिया, डेक के ऊपर। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और जो मेरी लेफ्ट रिब थी वो टूट गई थी, पसलियां टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भरा हुआ था। ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से भरा हुआ था। Somehow I found the wheel, किसी तरह मैं व्हील तक पहुंचा, जो स्टीयरिंग थी उस तक पहुंचा। लाइंड अप द स्टर्न, और जो जहाज का पिछला पार्ट था उसको लाइन अप किया, सीक्वेंस में लेकर के आया। एंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, अगली लहर के लिए मैं वहां पर आ गया था और लटक गया था। कहाँ के, अब क्या पकड़ रखा है, स्टीयरिंग व्हील नरेटर ने पकड़ लिया है। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था जहाज के नीचे पानी था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, परंतु मैंने साहस नहीं किया कि इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसके एग्जामिन करने के लिए, इसको परखने के लिए मैं अब जो स्टीयरिंग मैंने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ पाता। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड टिल पेज नंबर 14. I hope it is clear to you. Next pages will be continued in next video. Thank you.